Dear students, open page 66 of your book. Today I am going to start linear equations in two variables. This is chapter 4 of your book. Now this heading has 4 words. Number 1 linear, number 2 equations, number 3 two, number 4 variables. First of all, what are variables? You have studied in class 6. Variables are those things which vary. That is, they change. For example, temperature. Temperature varies from morning to night. So this is a variable. Variable in mathematics are usually denoted by small alphabets A, B, C, D, E, F and so on and X, Y, Z. Next word is equation. Now what is equation? Equation, an expression having a sign of equality, is known as equation. For example, 3 plus 5 is equal to 8. Now this is a sign of equality, therefore this is an equation, but it is an arithmetic equation because it is having numbers only. You have to study algebraic equations. Now what is the difference between algebraic and any other equation? Equation can be a literary statement also. For example, weight of Ram is equal to weight of Sham. This statement shows an equality between two students. Therefore, it is also an equation. But in class 9th, you have to study mathematical equation, that is algebraic equation. An algebraic equation has variables as well as constants. So, I am writing an equation 3x plus 5 is equal to 0. Since it is an equation, keep in mind it will always have a sign of equality, as well as it will have variables and constant. Here the variable is x and constants are 3 and 5. So this is a linear equation. As well as in this whole equation, it has only one variable x. So this is known as linear equation in one variable. Now variable you can change. For example, suppose I get 4z is equal to 7. This is also a linear equation in one variable. Here in this, the variable is z and the constants are 4 and 7. But now in class 9, you are studying linear equation in two variables. The general form of linear equation in two variables is ax plus by plus c is equal to 0. Here the two variables are x and y, and the coefficient of x is a and the coefficient of y is b, and the constant quantity in this equation is c. This is an equation because it is having a sign of equality and the two variables are x and y. Now I am taking another example. 2x plus 3y minus 7 is equal to 0. This is also a linear equation in two variables. The two variables are x and y. The constant terms are 2, 3 and minus 7. 2 is coefficient of x, 3 is coefficient of y and minus 7 is the constant term. कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि हमेशा x और y वेरिएबल ही हो, तुम कुछ भी ले सकते हो. मान लिया 7p minus 3q plus 8 is equal to 0. This is also a linear equation two variables. एक वेरिएबल p है, दूसरा वेरिएबल इसमें क्या है q. वेरिएबल्स को हम मैथमेटिक्स में we denote them by, usually we denote them by स्मॉल अल्फाबेट्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कैपिटल अल्फाबेट से भी हम डिनोट कर सकते हैं. मान लिया -3a plus 5b is equal to 0. This is also a linear equation in two variables. यहाँ पे
कोफिशिएंट ऑफ p क्या है 7, जो कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई है। कोफिशिएंट ऑफ q इन दिस इक्वेशन इज -3 एंड द कांस्टेंट टर्म इज 8। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0। अब अगर तुम्हें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कुल इसी में यहां से यहां तक 5 वर्ड हमने यूज किए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं देखता हूं वेरिएबल्स क्लास 6 में तुमने पढ़ा। वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं जो कि चेंज होती है। एक इंग्लिश में वर्ड है वेरी मींस चेंज। इसी से मैथमेटिक्स में वेरिएबल बनाया, यानी वो फैक्टर्स जो चेंज होते हैं, जिनकी वैल्यूज चेंज होती हैं, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल में दिया, टेम्परेचर है, मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे दिन निकलता है तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो टेम्परेचर क्या है, एक वेरिएबल है। टाइम, रात में 12 बजे थे, फिर 1 बजे, 2 बजे, सीजन चेंज होते रहते हैं, मंथ चेंज होते रहते हैं, ये सब चीजें क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल्स को इन मैथमेटिक्स भी, यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। यहाँ पे x को अगर हम 1 देंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 × 1 = 3 + 5 8 आ जाएगा। x को 2 देंगे, 3 × 2 = 6 + 5 11। यानी जैसे जैसे हम x को चेंज करेंगे वैसे वैसे इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो इसलिए ये जो अल्फाबेट्स हैं इसे हम डिनोट करते हैं, ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। उसके बाद 2 जो है कांस्टेंट है, 1 के बाद 2 आता है। इन जो है प्रेपोजिशन है। इक्वेशन एक मान लिया मैंने ऐसे लिखा 3x + 2, तो याद रखना यहाँ ये जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। जैसे इसको हम इक्वेट कर देते हैं, मान लिया मैंने इसको इक्वेट कर दिया = 7, तो दिस बिकम्स एन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 6, 7, 8 में तुमने x यूज किया तो मैं वही यूज कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो 5z - 6 = 0। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल z। उसके बाद लीनियर का मीनिंग एक वर्ड और इसमें एक्सप्लेन करना भूल गया। लीनियर का मतलब क्या होता है, इफ द डिग्री और पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया है, x के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पावर क्या है, 1, y की पावर भी 1 है, लेकिन याद रखना c इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इसको कहलाते हैं लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन, दीज ऑल आर लीनियर इक्वेशंस। x की पावर यहां 1 है, z की पावर 1 है, a और b की पावर क्या है, 1 है। therefore this is a linear equation. This is a linear equation in two variables. This is a linear equation in one variables. और यहां पे हम क्लास 9 में पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया बच्चों, नाउ वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। जब भी कोई क्वेश्चन को 2-3 बार बच्चों पढ़ा करो, जब तक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा तो उसका आंसर नहीं दे पाओगे। डोंट टेक इट एज ए वेस्टेज ऑफ टाइम, ये 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। इस क्वेश्चन में एक नोटबुक दे रखी है और एक दूसरी चीज पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। उसके बाद जो नीचे बच्चों हिंट है, ये हिंट क्वेश्चन में नोट करते समय मत लिखना। वो कह रहा है टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹X। यहां पे कोई जरूरी नहीं है, तुम P और Q भी ले सकते हो, लेकिन चलो X और Y लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज इक्वल टू ₹X। हमने मान लिया जो चीज अननोन होती है उसको हम एज्यूम करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू ₹Y। ये कोई जरूर नहीं है X और Y से तुम A और स्मॉल a स्मॉल b, कैपिटल A कैपिटल B कुछ भी मान सकते हो। कोई भी एक अल्फाबेट फ्रॉम A to Z मान सकते हो। दो
अब उसके बाद देखो क्वेश्चन को पढ़ो, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अब इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ ए पेन, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इस ये लिटरेरी स्टेटमेंट है, इंग्लिश स्टेटमेंट है। नाउ यू कन्वर्ट इनटू ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ट्वाइस मींस you will multiply that thing by 2 into cost, the cost of a notebook is twice, cost of a notebook is twice the cost of a pen. Twice means you will multiply the cost of a pen by 2 times. Now what you have assumed the cost of a notebook, x, 2 into y. In place of cost of notebook, place the variable of cost of notebook, cost of pen. We have assumed cost of a notebook is equal to rupees x and cost of pen is equal to y. On multiplying 2 to the y, you get x minus 2, x equal to 2y. Now you have to write the equation in the form ax plus by plus c, x minus 2y is equal to 0. So this is thus the linear equation in two variables. The required linear equation in two variables is x minus 2y is equal to 0. मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, इंग्लिश लिटरेरी स्टेटमेंट को हमने जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में चेंज किया। नाउ कम टू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by is equal to c and indicate the values of a, b and c in each case. तो बच्चों पहली क्वेश्चन है 2x plus 3y is equal to 9.35, 5 के ऊपर बच्चों बार है यानी 5 रिपीट हुआ। तो सबसे पहले बात को समझो बच्चों, हमें इसको कंपेयर किससे करना है, ax plus by plus c is equal to 0। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसमें राइट में है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखोगे, ax plus by plus c is equal to 0। तो क्या हो जाएगा 2x plus 3y minus is equal to 0। अब इसको कंपेयर हमें किससे करना है, ऑन कंपेयरिंग विथ ax plus by plus c is equal to 0। a क्या चीज है बच्चों, x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मींस मल्टीपल, तो a यहां पे क्या है 2, b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो b कितना हो गया 3, और कांस्टेंट क्वांटिटी क्या हो गई c माइनस 9.35 के ऊपर क्या है बार। कोई डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन बच्चों, फिर से समझो, इक्वेशन हमें ये दे रखी थी, वो कह रहा है कंपेयर करो ax plus by plus c, तो c लेफ्ट साइड पे है तो हमने यहाँ पे राइट में दे रखा तो लेफ्ट में लिया, हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई। कंपेयर करने में x a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x 2, y का कोफिशिएंट b है 3 और c इज द कांस्टेंट टर्म। एक पार्ट में ऑन x माइनस y अपॉन 5 प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा फॉर्म में और लिख दो, x प्लस ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू x के साथ कुछ भी नहीं है तो 0 मत लिख देना बच्चों। On comparing a is equal to 1, b is equal to -5, c is equal to -10। चूंकि यहाँ पे साइन प्लस है तो इसको ले मैंने प्लस करके प्लस इंटू -1 अपॉन 5। वन मोर पार्ट, लास्ट पार्ट,
of this 5 is equal to 2x. Now we have to, first of all, we have to form this equation in the form of ax plus by plus c. Since 2x is on the right hand side, on transposing to left hand side you get minus 2x, and already 5 is on there, 0. On comparing with ax plus by plus c, a means coefficient of x, therefore a is coefficient of x. Since b is not here, it would be better if you write minus 2x plus 0 into y plus 5 into 0. b is equal to 0 and c is equal to 5. Therefore, since coefficient this value should plus 2x to minus 2x, since y is not there, so you can assume the coefficient of y is 0. That means on multiplying any number by 0, that number vanishes. So the variable y is not there. If any variable is not there, that means its coefficient is 0. 5 is equal to 2x. तो सबसे पहले बच्चों इसको ax plus by plus c के फॉर्म में लाओ और कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ o उसमें करोगे। बच्चों इन पार्ट को समझना है, कोई डाउट हो तो तुम मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, इसको करने की कोशिश करना। बाकी पार्ट्स हमारे होमवर्क है।